a blessing in disguise for you that you don't have to make a big one this time, and मैम you have to just, हाँ जी, मैम जो लास्ट ईयर बनाया था उसका तो कोई काम नहीं है ना? कोई यूज ही नहीं है. सो इट इज नॉट टू बी कंटिन्यूड, अदरवाइज पूरे ये 3 पार्ट्स में प्रोजेक्ट बनता था, विच वॉज अ ह्यूज वन. बट वो लास्ट ईयर वाले को भी कहीं फेंकना या कुछ ऐसा मत, डिस्पोज ऑफ मत कर देना. जस्ट कीप इट विद यू. We never know, but abhi filhal there is only one project, that is cash flow. So what you have to do is basically search for a company, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके बारे में डिटेल सर्च करो, then find a cash flow statement for that particular company, then analyze that cash flow statement. That is it, you have to do nothing else, you have to do about it. So how you go about, first is the acknowledgement page. You would write the acknowledgement. ये सारी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, no need to write it. बस keep this note कि कैसे कैसे करना है. अभी स्पाइरल मत बनाना. Do your project, keep it in loose sheet, उसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट किसी फोल्डर या किसी में रख देना. And that's it. Don't use those files जिसमें already वो transparent sheet वाली file होती है, जिसमें you have to pull out the sheet from the file and then you can sign. वो वाली file मत use करना. The best way is to get it spiral, and I'll give you the further details related to की presentation और वो सब बाद में. अभी सिर्फ आप ये समझ लो, acknowledgement, then the certificate by the guide means you would write the entire certificate on my behalf and then I'll sign it. ठीक है? Then is the certificate from the students. So your certificate. Next comes the cash flow statement. इसमें you have to write a very general 1 to 2 page about what is cash flow statements and what are the various types of activities under cash flow statements. जिसमें इसने explain किया हुआ है operating, investing and financing. Is this thing clear to everyone? यहाँ तक clear है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है? ये थोड़े pages हो गए हैं. Just a second, I'll show you. So देखो. You won't be able to see it. ये picture, can I edit it? Just a second, give me 1 second. Ma'am, if I'm not wrong, there should be a green color icon above the picture. So with while clicking that, you can rotate the picture. That's what I'm looking for. Can you see that? It's not here. Okay, this one. Select the picture. No, ma'am, above it, above where the boundaries or borders of the picture appear while selecting it. Select the picture. I've selected Scroll it. up. Scroll up. Scroll up. Yes, ma'am. This. Option at the very top. No, ma'am. Hmm. To click it, keep on pressing it, and then rotate it. No, because I is think there it's any? the mouse. It would be done with the mouse, but I'm actually right now I'm working with the tab. वो mouse है ही Acha. नहीं मेरे पास. Yeah, then So okay, it's okay. You can just have a look ऐसे ही कि this is basically the cash flow statement of the company. इसमें सिर्फ फाइनेंसिंग दिया हुआ है, बाकी पेजेस मिसिंग है. सो आपको कहीं पे भी कंपनी की मिल जाएगी. वेबसाइट पे जाओगे, यू कैन इजीली फाइंड. आप एंटर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो. इसने आईटीसी की ली हुई है, सो यू कैन टेक एनी. एंड देन यू वुड एनालाइज. एनालाइज कैसे करना है? एनालाइज करना है बेसिकली ईच एंड एवरी एक्टिविटी. ये देखो, 1 point this to be done. Name of the project, your cash flow statement, period. What you will be obviously taking 2 periods and you will be analyzing those 2 periods. What are the objectives? Then what is the tool? It's the company website. The source is company website.
that you would be taking. Then you have to analyze each and every activity. Under operating में कौन कौन सी activity है, supposedly इस case में लिखा हुआ है कि depreciation and amortization expenses have been increased from say 8,000 something million to 10,000 million. ठीक है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैव आल्सो बीन इंक्रीज्ड, लॉस ऑन सेल। पहले तो सिर्फ जनरल एनालिसिस करना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। इसने ऐसे ही इन्वेस्टिंग और ऐसे ही फाइनेंसिंग का एनालिसिस करा हुआ है कि कौन कौन सी आइटम है मेजर जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इज दैट ओके? Noted, ma'am. Then ये this is the most important thing that you have to prepare. This is the chart that it has been this person has prepared. In this chart you have to depict कि जो cash flow from the operating activities, investing, financing, opening cash and cash equivalents, ये for every year, यहाँ पे 2 ही साल का लेना था, इसने 3 साल का ले लिया। For every year, is it increasing or is it decreasing? So this kind of histogram you have to prepare on the graph paper itself, and it should be very neat and clean. ठीक है? हम ये Next, समझ गए हैं, ये हिस्टोग्राम में बेसिकली फर्स्ट पे लिखा हुआ है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाँ, then operating, then investing and then financing. तो ये आपने कहाँ से लिए आइटम्स, ये फिगर कहाँ से लिए? जो आपने कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ली थी, उसमें अगर सपोजिटली ओपनिंग वाज 25 फॉर 2013 एंड 2014 का ले रहे हो, दैट वाज 15, तो यहाँ पे आप you will make a histogram depicting that thing. Similar for the operating and similar for the investing and financing, और फिर वही closing की। श्योर ठीक मैम। है, तो आप ये दिस जो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ऑब्वियसली रिमेन द सेम जो मनी अमाउंट होएगा, एंड एक्स एक्सिस जो आपका ओपनिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड क्लोजिंग, दिस वुड बी योर एक्स एक्सिस ओनली। सो ये जो आप गैप है, जैसे इसने 100 इन बिलियंस लिया है, सो दिस डिपेंड्स ऑन योर कंपनी डेटा कि कितना डेटा है और किस हिसाब से आप ये लेना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। Then the final thing comes on the observation. Observation में आपको क्या है? You have to, पहले आपने एनालिसिस करा जिसमें आपने बताया कि एक्टिविटीज का जो भी सारी एक्टिविटीज से अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बिल्डिंग परचेज हुई, उसने इतने से इतना तक बिल्डिंग परचेज करी, दिस वाज द चेंज। अब यहाँ पे जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन में आप ये करोगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव क्यों आ रही है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव, व्हाट इज द रीजन दैट इट इज कमिंग टू आउट टू बी पॉजिटिव। क्योंकि आप ये बताओगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव इसलिए आ रही है बिकॉज परचेजेस जो है उसने फॉर 1 ईयर ज्यादा करी एज कंपेयर टू द सेल्स। ठीक है, और उसको इस चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए था जबकि उसने नहीं करा। ऐसे करके आपको एक काइंड ऑफ एन एनालिसिस और अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, दैट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट, कि व्हाट शुड बी डन टू मेक अ पॉजिटिव कैश इनफ्लोज। मैम ये खुद से ऐड करना है हम अपने व्यूज ये मतलब। ऑब्जर्वेशंस अपनी करनी है एट द एंड, बट ये ऐसे नहीं कि टोटली अपनी करोगे। फॉर दिस यू हैव टू रीड इन डिटेल अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि इसने किस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करा है, क्यों ऐसे नेगेटिव आ रही है या क्यों पॉजिटिव आ रही है। ये सब आपको अपनी, पहले आप उसको अच्छे से रीड करोगे तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवम, यू कैन जस्ट रीड इट आउट क्विकली। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इसने अपना रिव्यू दिया हुआ है। Sure, ma'am. This column says in 2013 the inflow of cash from operating activities was rupees 6,709 crores. In 2014 it increased by 2,500 252.41 crores. This indicates 3.76 increase in the year, which is good. In 2015, the cash flow from operating activities picked up tremendously. It increased by rupees 2346 crores, which amounts to rupee 33.7% increase, which is very good. This may be due to recovery from debtors and max.
And and more more and more and more of cash sales. Acha, more and more of cash sales. Over the years from 2013 to 2015, the cash inflow has increased by 2,598.96 crores, which amounts to 38.73% increase. This implies that ITC Limited is carrying its Carrying its business well. business well. सो बेसिकली हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऑपरेटिंग में उन्होंने बोल दिया कि दे आर कैरिंग देयर बिजनेस वेल बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज पॉजिटिव, कैश ऑपरेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज पॉजिटिव। जैसे इसने ये वाला लाइन डाली है ना, विच इज वेरी गुड, दिस मे बी ड्यू टू द रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स एंड मोर। तो ये आपको ऑब्वियसली पता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कब बढ़ता है, व्हेन इट इज इंक्रीज। पॉजिटिव कब आएगा, टेल मी। मैम जब इनफ्लो होगा कैश। इनफ्लो होगा, इनफ्लो किस किस चीज से हो सकता है? Ma'am, or revenue डेटर्स which the company डेटर्स generates. पैसे देते हैं। एग्जैक्टली exactly. क्या ये हो सकता है, इसने पॉइंट लिख दिया कि डेटर से रिकवरी अच्छी हुई है, या मोर ऑफ कैश सेल्स हो गई, या जो आपके बिल्स रिसीवेबल हैं या वो इंक्रीज हैं, मतलब सॉरी वो डिक्रीज हैं। सो वट एवर यू नो दैट किन किन एक्टिविटीज से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो एनालाइज करके विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी आपको बताना है अपना रिव्यू। इसमें इतना कोई टेक्निकलिटी में नहीं जाना, आप यू कैन रीड इट एंड यू कैन एनालाइज इट, यू कैन सी व्हाट शी हैज रिटन। ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है बिकॉज आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट स्कूल में रह गए एंड आई वांटेड टू शो यू वन, तो मुझे एक ही मिला। it is not one of the best project I would say, but because we have nothing in our hands, so better than anything, something and better than nothing. So that is the only thing we have here with us. So ऐसे ही इसने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को भी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि व्हाट शी थिंक्स दैट शुड बी डन, दैट्स इट। और उसके बाद एक लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, बस यही आपका प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है प्रोजेक्ट में। समझ आई बात? Yes, ma'am. सो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए क्या अब आप कैसे प्रेजेंट करोगे? यू कैन राइट फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, फिर आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी लाइंस लिख दो। द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द प्रोफाइल, व्हाट इज द कंपनी डीलिंग इन, एंड ये वो 1 पेज यू कैन राइट ऑन दैट। नेक्स्ट यू वुड राइट जो वो वाली मैंने आपको शीट दिखाई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि क्या प्रोजेक्ट आप एक्चुअली कर रहे हो। नेक्स्ट यू कैन राइट थिंग्स रिलेटेड टू दी कैश फ्लो, कि कैश फ्लो क्या होता है, स्टेटमेंट्स उसके, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग क्या है, फिर इन रिस्पेक्ट टू द कंपनी उसका एनालिसिस कर दो 3-4 पेजेस का, कि ऑपरेटिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में क्या है, फाइनेंसिंग में क्या है। देन यू हैव टू मेक द ग्राफ and then you have to do the observations with respect to all these three, and then the final would be the conclusion. That's it. Sure, ma'am. ठीक है? So what can I do is I can share these I can share these images on WhatsApp to you. अगर एक बार देखना हो, आइडिया लेना हो तो ले लेना। Again and again I'm saying this is not the best project that I have. You can add on to it and you can make it a better one. Is that okay? Anybody having any doubt regarding this? कुछ questions? मैम इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला जो एनालिसिस दिया हुआ था देयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाज आल्सो गिवन, सो डू वी हैव टू लाइक मेक द हाँ 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 कर एक्चुअली ना ये वाला प्रोजेक्ट में कंपैरेटिव टेबल भी था पहले, तो आप इसमें कंपैरिजन वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ओरली फाइंड आउट दी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है, so that you can add on to your statement. That's it. ऑब्जर्वेशन में फिर कुछ तो लिखने को होगा ना, अदरवाइज देयर वुड बी नथिंग टू राइट। सो इसीलिए बस वो लिख देना, बट नो नीड टू मेक अ स्टेटमेंट सेपरेटली, वो रफ में करके देख लेना। ओके ठीक है? एंड फॉर दिस guidelines for how to do it, you can use any color pen except those which are light ones. Please
आप लोग क्या करते हो, इतनी डार्क कलर्ड शीट ले लेते हो और उसमें ये ऑरेंज से और इससे लिखते हो. प्लीज डोंट डू दैट थिंग. हम वी आर इन क्लास 12th. ठीक है. सो हम इतनी छोटी छोटी और ऐसे ये बचकानी हरकतें, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लीज मत बनाना. मेक इट अ फॉर्मल वन. यू वांट टू टेक वाइट इंटरलीव, होनी इंटरलीव शीट्स ही चाहिए. यू कांट मेक बोथ द साइड रूल्ड नहीं चाहिए मुझे. आई वांट इंटरलीव शीट्स. यू कैन यूज वाइट, यू कैन यूज कलर्ड, एंड आई डोंट वांट दैट प्रिंटेड वंस. प्लीज वो सब मत करना. ठीक है. प्लेन और कलर्ड कैन गो. ठीक है. एंड उसमें आप यू कैन राइट गुड हेडिंग्स. हेडिंग्स को थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट बनाना. इवन दोज हु आर नॉट गुड, नॉट हैविंग गुड हैंड राइटिंग, वो ये कर सकते हैं कि गिव गुड गैप्स. देखो इस बच्चे की भी हैंड राइटिंग इतनी वाव नहीं है, बट गुड गैप्स, एंड सो दैट इट लुक्स प्रेजेंटेबल. और स्केच पेन से प्लीज मत लिखना. डोंट राइट इट विद स्केच पेन. दैट लुक्स वेरी वेरी बैड एंड शैबी. ओके एवरीवन. मैम करंट ईयर ही लेना है, कोई भी ईयर ले सकते हैं? हाँ हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दिस. ये मुझे बताना था. 2017 और 18 के बाद के ईयर्स लेना. 2017 के बाद के, उससे पहले के तो बिल्कुल नहीं लेने. सो ट्राई टू टेक एज रिसेंट एज यू कैन. ठीक है. Sure, ma'am. ओके मैम. एनीथिंग एल्स? Ma'am, the analysis we only have to take 2 years for that, right? 2 years. मैं आपको व्हाट्सएप पे, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, वो भी मतलब इट्स आल्सो नॉट दैट गुड, बट अगेन आई विल शेयर इट with you so that you have a broader picture of what is to be done. वो मैं सारा आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे. ठीक है. Sure, ma'am. Okay, so let's end it here, and let's start with our next topic. And can you see the screen? Yes, ma'am. I've totally forgotten what we did last. Please remind me if you know. हमने ये वाली entries करी थी. Have we done these questions? Lesson Ma'am, we plan were 50. doing calls in advance last time. Okay. Calls in area के question कर लिए थे हमने. Yes, ma'am. Just a second.